ایران سے مذاکرات آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں میں ہو سکتے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، مذاکرات میں اچھی خبر آ سکتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، ایران نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایران سنجیدگی سے مذاکرات میں شامل ہوا، لیکن امریکہ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ مسلسل اپنا موقف بدل رہا ہے، اسلام آباد جانا قومی مفاد میں ہوا تو ضرور جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، تنازع کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ اور لاہور، پنڈی، ملتان سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک جرمانوں میں کمی، موٹر سائیکل اور رکشے کا کم سے کم چالان 1000 روپے مقرر، موٹر سائیکل اور رکشے کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 2000 روپے برقرار، پنجاب اسمبلی نے بل منظور کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا ذاتی حیثیت میں اپنی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنگ بندی میں توسیع سے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا، امید ہے فریقین جنگ بندی کا احترام جاری رکھیں گے۔ پاکستان تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امن کو ایک اور موقع مل گیا۔ امریکہ نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر ایران پر حملے روک رہے ہیں۔ مذاکرات کے حتمی نتیجے اور ایران کی جانب سے باضابطہ تجویز تک جنگ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی فوج کو حملوں کے بجائے صرف ناکہ بندی جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ابنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران شدید مالی بحران کا شکار ہے، اس کو روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران فوری طور پر ابنائے ہرمز کھولنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اقدام جنگ ہے، اس لیے یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ کمرشل بحری جہاز کو نشانہ بنانا اور اس کے عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے، ہم دھونس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے مغرب میں لائبیریا کے کارگو جہاز پر فائرنگ، جہاز سمندر میں رک گیا۔ رائٹرز کے مطابق کارگو کا عملہ محفوظ ہے اور جہاز کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور امن کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جین میریٹ نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے، کراچی نے پہلے کھیلتے ہوئے 182 رن بنائے، پشاور کی ہدف کے تعاقب میں بلے بازی۔ پی ایس ایل کے میچز دیکھیے 10 سپورٹس پر براہ راست۔ پشاور کی علی رضا کی پی ایس ایل 11 کی پہلی ہیٹ ٹرک، خوش دل شاہ، شاہد عزیز اور حسن علی کو پویلین بھیجا۔ پہلگام فالس فلیگ کا 1 سال مکمل، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، بھارت نے آئندہ کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خود مختاری، وقار اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کا ڈرامہ، 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کی منظم سازش رچائی۔ مودی سرکار نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ سچ سامنے آنے کے ڈر سے بھارت نے پاکستان کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش مسترد کر دی۔ مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر سخت سوالات اٹھانے لگا۔
पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर अफसरान की सरजमिश। मरियम नवाज ने कहा, कत्ल, डकैती, अगवा जैसे वाक़यात का बढ़ना बर्दाश्त नहीं। मनशियात के वाक़यात की अदादोशुमार देख कर शर्म आती है। बस कंडक्टर ने बच्ची को मारा, कानून का खौफ है तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत कर दी। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। इंग्लिश काउंटी ने मुआहदा मुअत्तल कर दिया। PCB मोहम्मद नवाज के मामले पर इंक्वायरी नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक ICC ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ICC का फैसला आने के बाद मोहम्मद नवाज जवाब देंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए एशियाई तरक्याती बैंक और NHA में मुआहिदा तय पा गया। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे पर 15 इंटरचेंज तामीर होंगे। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की शाहराह है। कराची पोर्ट से ट्रैफिक पेशावर और गिलगित तक मोटरवे के जरिए जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग का जायजा। हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा, 5 साल में मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की मंसूबाबंदी है। $4.5 अरब तक फ्यूल की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में तेजी लाने की हिदायत। जंगबंदी में तौसी पर UN सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। मजीद बातचीत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, तवक्को है पाकिस्तान की काविशों जामे और पायदार हल के लिए साजगार माहौल तश्कील पाएगा। फरीकैन जंगबंदी को खतरे में डालने वाले इकदामात से गुरेज करें। बरतानिया का भी जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। वजीर खारिजा ने कहा, आबना हुर्मुज़ को किसी भी पाबंदी या फीस के बगैर मुकम्मल खोला जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ के तर्जुमान ने कहा, ट्रंप की जंगबंदी में तौसी की बात बेमानी है। जो फरीक शिकस्त खा रहा हो वह शराइत तय नहीं कर सकता। नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। जंगबंदी में तौसी दरअसल एक चाल है जिसका मकसद वक्त का हुसूल है। तेहरान में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। रैलियों के दौरान ईरानी हुकाम की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल अवामी मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किए गए। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मज़कूरा शख्स ईरानी सिविल डिफेंस में इंतजामी ओहदे पर फाइज था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली से मुताल्लिक इजलास। हवाई अड्डों पर सहूलियात बेहतर बनाने और इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग देने पर गौर। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफरी सहूलियात फराहम करना हमारा अज़्म है। विफाक और सिंध हुकूमत में कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने पर इत्तफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में कोयला फाटक ता चमन फाटक ब्लैक टॉप रोड का इफ्तिताह। मुख्तलिफ इलाकों के हजारों शहरी मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, सड़क की तामीर से कोयटा में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। छोटी सी गफलत बच्चे की जान ले गई। कराची के इलाके मंगोपीर में 8 साल का बच्चा शरारत में ट्रक के पीछे लटक गया। ड्राइवर ने अनजाने में ट्रक रिवर्स किया। बच्चा दरख्त से टकराकर दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से बढ़ गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां 14 अफराद, कंपनी और जहाजों पर नाफिज की गई।
नई पाबंदियों का शिकार कंपनियां ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन और तौसीई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की जानिब मोड़ी जा रही है। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लेथरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी, निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पेम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मरगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। मोटरवे से इस्लामाबाद जाने वाली तमाम बसें अड्डों पर ही मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक जीटी रोड पर सफर करने वाली कुछ बसें रावलपिंडी तक जा रही हैं। मुकम्मल रास्ते खुलने तक इस्लामाबाद बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात जुलाई में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद करार दी हैं। कहा, जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में पोलिंग मुतवक्के है। इलेक्शन शेड्यूल मई के वस्त में जारी होने का इम्कान। सियासी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। 24 हलकों से मजमूई तौर पर 665 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 26 खवातीन भी शामिल। सबसे ज्यादा 58 उम्मीदवार गिलगित हलका 2 से सामने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास। ओपोजिशन का बायकॉट का फैसला। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, असम्बली बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद स्टेडियम में इजलास क्यों? इक़दाम गैर ज़रूरी अखराजात और अवामी पैसे का ज़िया है। वसाइल को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोना फी तोला 100 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,98,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,27,779 रुपये का हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा, गुज़श्ता रात पीक टाइम में बिजली की फराहमी बेहतर रही। डिमांड में इजाफे के बावजूद 1 से 2 घंटे तक की लोड शेडिंग की गई। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को फौरी LNG फराहम करने की पेशकश। कहा, इस्लामाबाद से दरखास्त मिलते ही सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। आज़रबाईजान की सरकारी कंपनी के मुताबिक 2025 में फ्रेमवर्क मुआहिदा पाकिस्तानी खरीदार को बराह रास्त कार्गो हासिल करने की इजाज़त देता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। गूगल ने डूडल जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात हमारे लिए मौजूदा हकीकत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए कोशां है। अजीम मुआइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। बहैसियत अदाकार, गुलकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनमाया।